Good morning, dear students. Today I am going to discuss about heart problem. It is called cardiomyopathy. Cardio means heart, myo means muscles, and pathy means disease or problem, disorder. So I'm going to discuss what is the cardiomyopathy. Cardiomyopathy is a problem, intrinsic problem of the cardiac muscle. Okay, cardiomyopathy. Uh, some conditions excluded because of if it is occurring by the some problems like BP, high BP. Due to high BP, if cardiac muscles get damage, it is not included in cardiomyopathy. Or congenital heart disease like valvular heart disease, okay, and inflammation, coronary artery disease. If it all these conditions is occurring, so it is by this cardiac muscle is damaging, so it is not included in cardiomyopathy. Okay, so cardiomyopathy is primarily divided into two part, like primary cardiomyopathy and secondary cardiomyopathy. So primary cardiomyopathy is further divided into three part. Like first is dilated cardiomyopathy, okay, or you can say congested cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, and restrictive cardiomyopathy. Okay, cardiomyopathy is divided into three parts, like dilated cardiomyopathy. It is also called congestive cardiomyopathy. Another is hypertrophic cardiomyopathy, and third is restrictive cardiomyopathy. Okay, you can see like this: the cardiomyopathy, primary and secondary, and is dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, and restrictive cardiomyopathy. So, students, I am going to first discuss about dilated cardiomyopathy. So, dilated cardiomyopathy, in this condition, your heart will enlarge because of hypertrophy of the cardiac muscles or enlargement of the all four chambers of the your heart, especially ventricles get enlarged because of hypertrophy of the cardiac muscles. Okay, generally the heart weighing near about 250 to 350 gram, but in cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, it goes near about to 1000 gram also. So the dilated cardiomyopathy, this is dilated cardiomyopathy. So whole heart will enlarge, or all the chambers will enlarge by the thinning of this endocardium. Okay, so the myocardial muscles will enlarge or hypertrophied. Because of this, cardiac muscle will enlarge. The main reason is this: the symmetrical hypertrophy of the cardiac muscles, or you can say sarcomere or fibers of the endocardium, will enlarge. Okay, this is this. It will look like balloon shape. This is called balloon shaped heart. Okay,
and you can see the thickened endocardium also, thickened endocardium also, and your luminas or well dilated. So somewhere uh, your mural thambus will be also there. So because of this ballooning or enlargement of heart, there will be uh, low contraction. The heart will not contract properly because of heavy dilatation. So there will be deficit of systolic function. यहाँ क्या होगा, सिस्टोल नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, देयर विल बी नो सिस्टोल प्रॉपरली. एंड व्हेन अगर हार्ट सिस्टोल नहीं कर पाता, देन पंप आउट नहीं होगा ब्लड, तो यानी कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहेंगे इसको. एंड इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम लो हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोक वॉल्यूम विल लो. So this is also called global hypokinesia. Okay, so ये hypokinetic नहीं, ये kinetic नहीं रहेगा, it is means hypokinetic हो जाएगा. तो contractibility will be low. So because of low contraction, systole will be not there. So systole नहीं रहेगा, so आपका वो ड्रॉप होगा स्ट्रोक वॉल्यूम. सो इसको फिर क्या कहेंगे, कंजेशन हुआ. दिस इज कॉल्ड कंजेशन इन हार्ट बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द योर हार्ट मसल्स. सो कंजेशन होने की वजह से आपका स्वेल बड़ा, मतलब कंजेशन की वजह से ये सिस्टोलिक कंडीशंस नहीं बन पा रही हैं, सिस्टोल नहीं हो पा रहा है. तो इस कंडीशन को आप कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं. You can say this is dilated cardiomyopathy or congestive cardiomyopathy. Congestive cardiomyopathy because of ballooning of the heart. It resists to systole. मतलब अगर ये सिस्टोल नहीं कर पाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम लो हो जाएगा. ये स्पेशली कई बार क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी किसी बच्चे में आया तो नियर अबाउट जब से स्टार्ट होता है तो नियर अबाउट 5 years तक जाते जाते डेथ कैन अकर ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्ट फेल्योर. सो ये 5 years तक प्रोग्रेसिव एक चलता है, धीरे धीरे करके ये बढ़ता है और एक समय आता है कि हार्ट फेल्योर में चला जाता है बिकॉज ऑफ लो स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, सो इसके कई एटियोलॉजीज कही जाती हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो एनी एटियोलॉजी और प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, बट सम हाइपोथेसिस है, लाइक कुछ हाइपोथेसिस हैं, लाइक जैसे आपका जेनेटिक फैक्टर है. ओके, जीन्स के थ्रू वो आ गया है, आपके फैमिली में चल रहा है. एंड सबसे फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर dilated cardiomyopathy is chronic alcoholism. So chronic alcoholism, by the chronic alcoholism, thiamine deficiency will be occur, induced by the alcohol. तो thiamine deficiency अगर होता है, so cardiac muscles will get hypertrophied or unable to do the contractions. And another thing is large quantity में अगर कोई बियर पीता है, intake of beer. So in beer they use cobalt for increasing the foam, मतलब उसको फोम बनाने के लिए, फोम जब वो करते हैं, सो फोम को बनाने के लिए थोड़ा कोबाल्ट डाला जाता है ज़्यादा. सो लार्ज क्वांटिटी में अगर कोबाल्ट होता है तो ये डायरेक्ट इंजरी करता है टू द योर कार्डियक मसल्स. ठीक है, टॉक्सिक इंजरी करता है कार्डियक मसल्स में.
एंड एक कंडीशन और होती है कि ये जेनेटिकली अगर आपके आ रहा है तो पेरीपार्टम कंडीशन पे भी होता है। पेरीपार्टम मीन्स कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो नियर अबाउट एंड द एंड ऑफ द लास्ट मंथ, लास्ट ट्राइमेस्टर से ले करके जब तक उसकी डिलीवरी हो जाती है, बाहर निकलता है, तब भी उसको कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। तो पेरीकार्डियम सॉरी पेरीपार्टम कंडीशन भी कही जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पेरीपार्टम कंडीशन। तो बिकॉज ऑफ लो न्यूट्रिशन नरिशमेंट, है ना, सो उस लेडी को नहीं मिला पाया इतना, तो थियामिन डिफिशेंसीज वगैरह हो गई, वेरी वेरी कई कंडीशन बन गया, हार्ट वेरी वेरी नहीं चला गया, तो इसको बोलते हैं कि कार्डियक वेरी वेरी और डिफिशेंसी ऑफ थियामिन बिकॉज ऑफ लो न्यूट्रिशन, लो मतलब डाइट इज़ नॉट प्रॉपर इन टेकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, द आफ्टर द सम मंथ और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर से लेकर के बाहर जब बच्चा निकलता है तब तक दिस कंडीशन विल कैन डेवलप। एंड कुछ hypothesis also is there because the viruses get involved in your myocardium to infect the viruses. So कुछ viruses भी पाए गए हैं आपके मायोकार्डियम में, बिकॉज जब उसकी वो की गई वैक्सीन वगैरह की गई, सब कुछ किया गया, तो उसमें से आपको कुछ वायरसेस भी मिले जब किसी की डेथ हुई बिकॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सो ये भी हाइपोथेसिस है कि वायरसेस की वजह से भी होता है। सो इसमें क्या होगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इसका मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा। मिट्रल रिगर्जिटेशन मीन्स कि चीज़ें ऊपर जाने की बजाय जो आपका एरोटास के थ्रू आपके बॉडी को देना है, सो तो वो वापस आएंगी, चाहे आपका मिट्रल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो चाहे मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो ऑल द वॉल्स थोड़ा सा लैक्स रहेंगे, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ लैक्स फाइबर्स ऑफ द योर होल हार्ट्स मसल एंड रिलैक्स रहेगा, बैलून की तरह रहेगा, तो सारा चीज़ें ऊपर जाने की बजाय ये नीचे ही आते रहेंगे, तो रिगर्जिटेशंस विल बी देयर, ओके, जिसको कहते हैं कि उल्टा चलाएगा आपके उसमें। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन इज विल बी ऑल्सो देयर। एंड इसमें आपको कुछ मरमर भी सुनाई देती है, लाइक ओलोसिस्टिक मरमर्स आती है। मरमर मीन्स कि द एबनॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, ओके। सो इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी you will get some murmur also, like tricuspid murmur or bicuspid murmur और mitral की murmur आएगी, ठीक है। Then another is hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy. See, this is hypertrophic cardiomyopathy. Okay. In this condition, ventricular septum, okay, this septum will enlarge or hypertrophied, and it will push to the also mitral valve. ये क्या करता है, इसको दबाता है। सो कई बार क्या होता है कि अगर वॉल्यूम वगैरह सब ठीक है, तो डायलेट बिकॉज ऑफ दिस स्टिफनेस ये इसको पुश किया, सो कई बार वॉल्व जो है इसका तो ओपन है, सब कुछ है, बट कई बार ये थिक होने की वजह से या स्वेलन होने की वजह से इसको पुश करता है, और यहाँ से ब्लड का फ्लो आपका आर्टेरियल ये स्टोनोस्ड हो जाता है, आर्टेरियल स्टोनोसिस हो जाएगी, या बिकॉज जगह कम पड़ जाएगी, सो स्टोनोसिस की वजह से वो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द योर वेंट्रिकुलर वॉल, septal valve. This is the septum of the both ventricle. So this
muscle of the like especially in left ventricle involves. So the septal hypertrophy will be there. Okay, then it will obliterate. ये क्या करेगा? obliterate कर देगा. तो ये और ये कनेक्ट कर जाता है आपके, इसको भी ले लेता है, यानी कि आपके वॉल्स को भी हाइपरट्रोफाइड हो जाएगी. सो ये इसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करेगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होता है. सिमेट्रिकल मीन्स हर जगह आपके मायोकार्डियम एक सिमेट्री में एनलार्ज हुए, हाइपरट्रॉफी हुई. बट इन योर कार्डियक ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट्स होते हैं. एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफिक एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ सम एसिमेट्री. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, कहीं पर ज़्यादा फाइबर्स रहेंगे, कहीं पर साइकोमेर्स ज़्यादा डेवलप होंगे, कहीं पर कम हो गए, फाइब्रेंस उसके कम डेवलप होंगे. देन asymmetry will be developed. So your left ventricle अगर ये ज़्यादा enlarge है, so यहाँ पर septal डिफेक्ट की वजह से ये पुश किया हुआ है उसको, और ब्लड के फ्लो के लिए, स्ट्रोक के लिए ये नहीं जाने दे रहा है. तो ये शेप एक चेंज कर लेगा. दिस इज़ कॉल्ड बैलून शेप्ड, यानी हार्ट जो है बैलून शेप्ड का हो जाएगा, सॉरी बनाना शेप्ड का हो जाएगा. सॉरी, हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हार्ट विल वन बैलून शेप्ड, सॉरी बनाना शेप्ड, सॉरी. सो यहाँ पर जो एनलार्जमेंट होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिमेट्रिकल हुआ. सारी जगह पे जो जितनी भी आपकी कार्डियक मसल्स हैं एक सिमेट्री में इलाज होंगी, एक सिमेट्री में हाइपरट्रॉफी होगी. बट इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी होती. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. ओके, सो ये सिमेट्रिकल होगा, विच वन? डायलेटेड. एंड अनदर इज हाइपरट्रॉफिक कंडीशन इज एसिमेट्रिकल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. सो टिपिकली ये जो है कम से कम एज इसकी होगी 25 से 50 साल के बीच में होता है. और जनरली क्या होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, और अचानक से कभी बहुत हैवी एक्सरसाइज किया या रनिंग कर रहा है या कुछ हुआ, सो अचानक से उसका हार्ट पंप करना बंद कर देगा, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज को उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिटरेशन. ओके, सो कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, और जस्ट लैक ऑफ दिस कोरोनरी आर्टरी सप्लाई, लेफ्ट हाइपरट्रॉफी तो रहेगा ही, जिसकी वजह से कई बार कॉन्ट्रैक्शन विल बी नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस hypertrophic condition of the muscle. So ये 25 से 50 की एज में होता है. जनरली क्या होता है, ये यंग एथलीट्स वगैरह को होता है. जैसे कि अगर किसी एथलीट के फादर थे, वो कभी उसकी माँ ने बताया कि बेटा आपके फादर भी जो है किसी तरह से ऐसे खेलते खेलते डेथ हो गई थी उनकी, तो डोंट गो फॉर हैवी एक्सरसाइज एंड ऑल. बट बच्चा नहीं मानता और वो खेलता है खूब अच्छे से, एडोलेसेंट स्टेज में जाता है तो उसको ये नहीं लगता कि क्या सारी चीज़ें, तो वो खूब खेलता है, और जिसकी वजह से उसका अचानक से बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर वो उसके है, जीन्स में है, ऑटोसोमल जो आपकी डोमिनेंट कंडीशंस हैं
इनहेरिटेड हैं, सो उसकी वजह से वो कई बार हाइपरट्रॉफिक कंडीशंस जो हैं पुश करते हैं, ऑब्लिटरेट करते हैं ऑफ द योर एरोटिक फ्लो ऑफ द ब्लड, एंड देन अचानक से लो होता है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो थ्रो करना था ब्लड को आपके एट्रियम में, वो ये आपके बॉडी में, वो नहीं करता। ओके, सो सडन डेथ के भी कारण बनते हैं। सो सबसे पहले मतलब अगर कोई क्वेश्चन करता है, इफ़ एनीबॉडी आस्क यू, सो which one is the most cause of the sudden death in cardiomyopathy? The hypertrophic cardiomyopathy is the very much heavy cause of the sudden death of the 25 to 50 year of old age, or of the age. So इसकी वॉल क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, एंड हाइपर कंट्रैक्टाइल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हैवी मसल्स हैं। इसमें क्या होंगी, हाइपोकाइनेसिया होगा, इसमें क्या होगा, हाइपरकाइनेसिया होगा, हाइपरकाइनेटिक। सो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी विल बी हैवी, बट इन दिस कंडीशन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी विल बी लो। सो हाइपरकाइनेटिक, ड्यू टू हाइपरकाइनेटिक कंडीशन, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी विल बी हैवी। स्ट्रोक वॉल्यूम लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑब्लिट्रेशन। एंड इसकी जब हम ECG करते हैं या कुछ करते हैं तो बाइफिड पल्स वगैरह दिखेगी, या इकोकार्डियोग्राम करते हैं तो इसमें क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर मिलेगी। क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो आप आगे चल के इसमें पढ़ेंगे फर्दर दिखाएगा। और इसमें फास्ट, डेंजरसली फास्ट एरिथमियाज होते हैं, जल्दी, यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी विल बी इंक्रीज इन हाइपरट्रोफिक कंडीशन। सो ये डेथ का कारण बनता है बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम टू द अदर ऑर्गन्स, और अपने जितने लोकल अपने बॉडी पार्ट्स में नहीं मिल रहा है। एंड आपके जो हार्ट का खुद का कोरोनरी आर्टरी का contractibility depends upon your coronary artery supply, so it will also drop, तो इसकी वजह से ये। Then the next cardiomyopathy is restrictive cardiomyopathy. Okay, so you'll see the thickened mural endocardium, ये एंडोकार्डियम जो होगा थिक हो जाएगा, यानी कि जो इसमें हुआ ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, हाइपरट्रॉफिक वाले में थिक हो गया, सब कुछ हुआ, बट यहाँ भी थिकेंड होगा और जनरली वेंट्रिकल्स थिक होंगे, जिसकी वजह से डायलिटेशन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ भी डायलिटेशन में प्रॉब्लम आई बस बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द सेप्टम, एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आएंगी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो भी कम रहेगा, यानी कि आपका कैप जो आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो तो रहेगी, बट वो इतना स्टिफ रहेगा, इतना टफ रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो डायलिटेशन में प्रॉब्लम है। इसमें जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या था कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं हो रही थी, सिस्टोल विल नॉट देयर, बट इन बोथ कंडीशन डायस्टोल विल बी लेस और लो। सो इसमें आपके रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में वजह क्या क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। एमाइलोइडोसिस हो सकता है, एमाइलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है, या कार्डियक मसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स में के थ्रू आपके कार्डियक मसल्स में एमाइलॉइड फॉर्मेशंस वगैरह हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस योर वेंट्रिकल विल हैवीली enlarged and stiff, so contractibility will be also down by the amyloidosis,
and then some fibrosis also will be there. Fibrotic conditions भी होती है, जो कि कभी कभी क्या होती है कि एंडोकार्डियल फाइब्रोलेस्टोसिस इन चिल्ड्रन होती है, जो कि एज नियर अबाउट 1 to 5 ईयर की एज में हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक प्रॉब्लम एंडोकार्डियल फाइब्रोलेस्टोसिस होगी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. एंड सम कंडीशन इज कॉल्ड लॉफलर सिंड्रोम. लॉफलर सिंड्रोम मतलब हाइपर एस्नोफिलिक हार्ट इन योर कार्डियक मसल्स. एस्नोफिल heavily filled by the तो filled by the eosinophil. So the condition is called Loeffler syndrome because of heavy eosinophil in your cardiac muscles. This is called eosinophilic heart. And another is hematochromatosis. Hematochromatosis is the condition is the iron load will increase. आयरन लोड यानी कि आयरन का लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा. और हेमेटोक्रोमेटोसिस के मतलब कि द कंडीशन विल बी बिकॉज ऑफ हेमेटोक्रोमेटोसिस द आयरन लोड विल बी इंक्रीज एंड योर ventricular enlargement will be by the hyperchromatosis. So it will restrict the contractibility of your ventricle. And radiations, sometimes radiations is also is cause of your restrictive cardiomyopathy. Because of this the heart ventricles also will go for the condition for restrictions of the cardiac muscles or ventricular muscle. So it is all about your cardiomyopathy. So students have to go study with the textbooks also about cardiomyopathy. So we'll discuss later about all other conditions of the heart. So it is all about cardiomyopathy. Thanks.